ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਟੂਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਇਨਸਾਈਟਸ ਵਿਦ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੂਦ। ਵੈਲਕਮ ਸਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਅਮਨ। ਸਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਵੀ, ਜੋ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ ਇਸ ਕਤਲ ਦੀ ਤੇ ਕੌਣ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਦੀ ਜੇ ਉਹ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੇਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਆ ਜੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਬਟ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਸੈਂਟਰਲ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੋਪੂਲਰ ਫਿਗਰ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪੋਪੂਲੈਰਿਟੀ ਸੀ, ਉਹ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਲਾਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲੜੇ ਸੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ 'ਤੇ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ਰ ਮਿਲੇ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗਲੋਬਲੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਲਾਈਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਮੁਜਰਿਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅਬਾਊਟ ਵਨ ਮਰਡਰ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਸੇਫਟੀ ਆਫ ਦੀ ਪੀਪਲ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲੋਕੀ ਇਨਸਿਕਿਉਰ ਫੀਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਰਾਈਟ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਟੈਂਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ, ਐਂਟੀ ਸੋਸ਼ਲ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਰੈਡੀਕਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ। ਉਹ ਇਸ ਮਰਡਰ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਐਂਗਲ ਨਾਲ ਵਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਏਜੰਸੀ ਲੱਗੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਬੜੀਆਂ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਨੇ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇਣ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਸਾਡਾ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਿਲੇਟਿਵਲੀ ਸਿਕਿਉਰ ਮਾਹੌਲ 'ਚ, ਜਦਕਿ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਜਰਿਮ ਨੇ ਉਹ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਟ੍ਰਿਗਰ ਦੱਬਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਟ੍ਰਿਗਰ ਨੂੰ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਕੌਣ ਸਨ, ਕਿੱਥੋਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਆਈਆਂ, ਇਹਦੀ ਜੜ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟਰਸਟ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਮਸ਼ੀਨਰੀ 'ਤੇ ਰਵੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਸਰ, ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਨੂੰ ਅਪੁਆਇੰਟ ਜਾਂ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਦੇ ਥਰੂ ਹੋਵੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹਾਮੀ ਵੀ ਭਰੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਵੀ ਭੇਜੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟਸ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਸੀ ਜੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਜਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਪਣੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਅਗੇਨ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਟੇਟ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਲਈ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਜੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿੱਛੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਜੀ। ਤੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਤੇ ਸੇਫਟੀ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਫਟੀ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਉਹ ਉੱਠਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਗੇਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸ IPS ਨੇ, MLA ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਮੰਗ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਵਧੀਆ ਸੈੱਟ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਂ ਪਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਹੁਤ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਤਲ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਾਮਨ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਪਰਸਨਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲੀ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਜ਼ ਅ ਸੇਫ ਪਲੇਸ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਜ਼ ਅ ਸੇਫ ਪਲੇਸ, ਆਪਣੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖੋ, ਬਾਹਰ ਨਾ ਭੇਜੋ ਜੀ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੋ, ਇਟਸ ਅ ਸੇਫ ਪਲੇਸ। ਜੀ, ਸੇਫਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੇਸਿਕ ਨੀਡ ਹੈ, ਜੀ, ਉਹਦੇ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹਿਊਮਨ ਨੀਡ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਬੇਸਿਕ, ਸਿਰਫ ਹਿਊਮਨ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਲਿਵਿੰਗ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਨੀਡ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਫਟੀ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗਾ, ਤੇ ਬਲਕਿ ਐਂਟੀ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਬੰਦੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੇਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਕਰਨਗੇ, ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਫਿਊਚਰ ਹੀ नहीं फील करेंगे, तो वो चंगे कमां वाल किवें जाएंगे। सर, कश्मीर में जो हर दिन वारदात हो रही है, हर दिन किलिंग्स हो रही हैं, और उससे डर से लोग पलायन भी कर रहे हैं, लोग दोबारा माइग्रेट कर रहे हैं वहाँ से। जो हिंदू कम्युनिटी है खासकर, वो वहाँ रहना नहीं चाह रही, डर का माहौल बना हुआ है। देखो, जो भाजपा सरकार है उन्होंने कश्मीर की प्रॉब्लम को बेसिकली फंडामेंटली एनालाइज किया और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने कुछ इनिशिएटिव लिए। उनमें से एक धारा 370 को हटाना। जी, इस उनके फैसले से हम एग्री करते हैं कि धारा 370 को हटा देना चाहिए था, क्योंकि वो कश्मीर को भारत से इंटीग्रेट होने से रोक रहा था। पर जो इतने सालों से वहाँ पे जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं, जो एंटी इंडिया एलिमेंट्स, जिनको पाकिस्तान की सपोर्ट है, जो एक इस्लामिक आइडियोलॉजी को कश्मीर में लाना चाहते हैं, जो पूरे देश के लिए खतरनाक है, पूरी दुनिया के लिए खतरनाक है, उन लोगों ने अपना काम बंद नहीं किया। और बीजेपी ने शायद बहुत जल्दी नॉर्मलेंसी अनाउंस कर दी कि भाई अब यहाँ पे सब कुछ नॉर्मल हो गया, वहाँ पे अभी तक नॉर्मल नहीं हुआ। सेफ्टी की अभी हम बात कर रहे थे, सेफ्टी एक बेसिक नीड है ह्यूमन की। अगर वहाँ पे हिंदुओं को चुन चुन के मारा जाएगा, माइनॉरिटीज़ को, और सिर्फ हिंदुओं को नहीं, जो वहाँ पे इस्लामिक माइंडसेट वाले पाकिस्तान सपोर्टेड जो टेररिस्ट ग्रुप हैं, उनको जो लोग लोकल भी लगते हैं कि जो इंडियन आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं, चाहे वह पुलिसमैन हो जी, चाहे वो वहाँ के थॉट लीडर्स हों, वो उनको भी टारगेटेड किलिंग कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि कश्मीर में इस नंबर्स में किलिंग पहले नहीं हुई, किलिंग का नंबर तो पीक से शायद कम है, पर जब माइनॉरिटीज टारगेट होते हैं तो उससे ये गेम है नरेटिव्स की। पाकिस्तान एक कश्मीर में जो सेपरेटिज्म का नैरेटिव चलाना चाहता है, और गवर्नमेंट है जो इंटीग्रेशन का नैरेटिव चलाना चाहती है। उसमें जब आप माइनॉरिटीज़ पे अटैक करते हैं, उससे जो आप अनरेस्ट दिखाना चाहते हैं वो ज़्यादा नज़र आता है। जो आपस में वहाँ पे मेल मिलाप नहीं है या डिफरेंसेस हैं, वो ज़्यादा बढ़ के नज़र आने शुरू हो जाते हैं। जी, मेरे को लगता है कि इस वक्त जो वहाँ के लोकल कश्मीरी हैं, जम्मू वाले हैं, उनको भी इसके खिलाफ बोलना चाहिए। जो मेन लैंड के हमारे जो मुस्लिम ब्रदरहुड है, उनको भी हिंदुओं की किलिंग के खिलाफ बोलना चाहिए। उससे क्या होगा, हिंदू और मुस्लिम भाईचारे में आपस में प्रेम बढ़ेगा, आपस में टुगेदरनेस बढ़ेगी। इस वक्त जो भी कश्मीर में हो रहा है और जो भी माइनॉरिटीज़ के खिलाफ हो रहा है, तो आज जो मुस्लिम लीडरशिप है उनको उसके खिलाफ बोलना चाहिए। बिल्कुल। सेकेंडली, जब 2000 में पीक पे थी, 2001-2 में जब पीक पे थी कश्मीर में वायलेंस, तब लोकल पुलिस ने बहुत मेजर रोल किया था। जी, गवर्नमेंट को धारा 370 हटने के बाद लोकल पुलिस पे रिलाय करना चाहिए। उनकी जो इनपुट्स हैं, उनका जो लोकल नेटवर्क है, उसको दोबारा से एम्पावर, आई एम श्योर दे आर डूइंग इट, पर उसको और ज़्यादा एम्पावर करने की ज़रूरत है। जिससे आजकल क्या है कि गवर्नमेंट को आइडेंटिफाई करना पड़ता है वाइट कॉलर टेररिस्ट, हाइब्रिड टेररिस्ट। फॉर्चुनेटली आज ये है कि 2022 में, मैं इसको, हालांकि ये बात तो दुख भरी है, पर फॉर्चुनेट पार्ट ये है, इसमें भी एक सिल्वर लाइनिंग है कि ज़्यादातर टेररिस्ट जो मारे जा रहे हैं वो बाहर से आए हैं। जी, तो इट मीन्स आज टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को लोकली रिक्रूट करना मुश्किल हो गया है। ये एक भारत की विक्ट्री है। बट एट द सेम टाइम मेरे को लगता है कि बीजेपी गवर्नमेंट थोड़ी जल्दबाजी कर रही है ये बोलने में कि वहाँ पे नॉर्मलेंसी आ गई है। नहीं, नॉर्मलेंसी वहाँ पे नहीं है। वहाँ पे अभी भी अनरेस्ट है, बड़ी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं जो बड़े कई दशकों से वहाँ पे, जिनको आईएसआई की सपोर्ट है, इन्फिल्ट्रेशन अभी भी हो रही है। तो गवर्नमेंट को डिफेंसिव नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट को एक्सेप्ट करना चाहिए और स्ट्रॉन्ग मेजर्स लेने चाहिए कि हम, देखो, इट इज़ नॉट अबाउट क्रिएटिंग इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़। आप बोल रहे हो जी हम वहाँ पे कंपनियों की इन्वेस्टमेंट करा रहे हैं, ये करवा रहे हैं, पर जब वो सेफ ही नहीं फील करेंगे उस इन्वेस्टमेंट का क्या होगा? बेसिक नीड तो पहले सेफ्टी है ना, जो बार बार दोनों पॉइंट्स में हमारे आया है। तो ये मेरे को लगता है इस वक्त करंट सिचुएशन है कश्मीर की, कि अच्छे स्टेप हुए हैं, धारा 370 हटी है, थोड़ा सा कंट्रोल आया है, जो पत्थरबाजी होती थी वो रुकी है। बट अपने दुश्मन के रिजॉल्व को भी कम मत समझो। आपने स्ट्रॉन्ग स्टेप लिए हैं,
तो वो भी कुछ ना कुछ करेंगे, नई स्ट्रेटजी के साथ आएंगे। पर हमारी जो फाइट है वो देश के लिए, देश की इंटीग्रिटी के लिए और लोगों के भाईचारे के लिए, तो हमें उनसे एक स्टेप आगे जाना है। बिल्कुल सर। जो लोग ट्रांसफ़र ले रहे हैं, जो सरकारी कर्मचारी और ऑफिशियल्स हैं, जो वहाँ से ट्रांसफ़र की मांग कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट को उस कैसी पॉलिसीज़ लानी चाहिए वहाँ पे? देखो, सबसे पहले गवर्नमेंट को लोगों की सिक्योरिटीज़ पे ज़्यादा काम करना चाहिए। जहाँ पे वो रहते हैं उनके ऑफिस में सिक्योरिटी, रेदर देन कि हम वो आजकल जो भी टेररिस्ट एक्टिविटी होती है उसकी न्यूट्रलाइजेशन पे काफ़ी एफर्ट कर रहे हैं, जो सही है कि जो भी टेररिस्ट है उसको बख्शा नहीं जाएगा। पर एट द सेम टाइम आप उस लोकल, अब एक तो पहले तो टॉप लेवल पे उनसे कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है, उनके लीडर्स के साथ, उस कम्युनिटी के लीडर्स के साथ, माइनॉरिटी के साथ आपको बैठने की ज़रूरत है, उनको समझाने की ज़रूरत है और कॉन्क्रीट स्टेप क्या लिए जा सकते हैं कि वो सेफ फील करें। आपको कश्मीर में एक सर्टन एरिया में रहते हो, आप हर वक्त अनसेफ फील करते हो, आप खुल के बात नहीं कर सकते, आपका डिस्ट्रस्ट है वहाँ की मेजॉरिटी कम्युनिटी के साथ, तो वो कोई अच्छी लिविंग नहीं है। कुछ इंसानों की लाइफ कुछ एक्सपेरिमेंट के लिए खतरे में नहीं डाली जा सकती। तो मेरे को लगता है कि जो वहाँ पे हिंदू भाईचारा है उनको बिल्कुल सेफ फील कराना गवर्नमेंट की टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। जी सर, गवर्नमेंट को कोई कैंपेनिंग भी करनी चाहिए ऐसी कि लोगों में अवेयरनेस आए कि हम एक हैं, भाईचारा बढ़े, और उसमें जो मुस्लिम कम्युनिटी है और हिंदू कम्युनिटी है उन लोगों में भी भाईचारा आपस में बढ़े। देखो, मैंने पहले ही बोला ये गेम ही नैरेटिव्स की है जी। कौन नैरेटिव सेट कर पा रहा है? माइनॉरिटी किलिंग से जो भी लोग यहाँ पे डिस्टर्बेंस चाहते हैं उनके नैरेटिव को वॉइस मिलती है। अब इसीलिए मैंने बोला गवर्नमेंट के टॉप लोग मिले, दैट वाज माय फर्स्ट पॉइंट कि टॉप लोग जो गवर्नमेंट के हैं उस कम्युनिटी के लोगों के जख्मों पे मरहम लगाएं जी, उनसे बातचीत करें, इंश्योर करें कि आगे से ये इंसिडेंट्स ना हो। ये बहुत ज़रूरी है कि मैंने आपको बोला कि जब माइनॉरिटी किलिंग होती है उससे बहुत लाउड मैसेज आते हैं जी, तो ये बड़ा ज़रूरी है कि माइनॉरिटीज़ को वहाँ पे कंप्लीट प्रोटेक्शन मिले। वहाँ पे क्या, हर जगह पे। सेकेंडली, जो मुस्लिम कम्युनिटी है जो मेन लैंड में हमारे, हालांकि वो भी पार्ट ऑफ मेन लैंड है, जो मैं लेट से कि दिल्ली की बात करूं या जो भी हमारे दूसरे स्टेट्स में जो मुस्लिम कम्युनिटी है, उनको क्लियरली ये बोलना चाहिए और इस वायलेंस के, टारगेटेड वायलेंस के खिलाफ बोलना चाहिए। उससे भी हिंदू मुस्लिम ब्रदरहुड यहाँ पे भी बेटर होगा और वहाँ पे भी उसका मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग जाएगा। वहाँ के कश्मीरी जो मुसलमान हैं वो भी इंडिया के साथ ज़्यादा स्ट्रांगली फील करना शुरू करेंगे। और ऑफ कोर्स इट कांट, ये जो नैरेटिव है इसको कंट्रोल करना गवर्नमेंट का एक मेजर फोकस है और ये बड़ा उनका स्टेटेड पॉलिसी है और इस मामले में आर्मी के साथ मिलके वो काफ़ी एक्टिविटीज़ कर भी रहे हैं। जी बिल्कुल सर। इससे पहले कि हम इंटरनेशनल मुद्दों पे जाएं, एजुकेशन की बात हो रही है। पिछले 2 सालों में क्योंकि कोविड के कारण स्कूल बंद रहे और स्कूलों में नुकसान भी काफ़ी हुआ, मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम बहुत बड़ी आई है सामने। बच्चे जो हैं, छोटे बच्चे जो 1st से 5th क्लास तक के बच्चे हैं, उनको मैथमेटिक्स कैसे पढ़ाया जाए? देखो, इससे एक चीज़ तो साबित हो गई कि टीचर्स का जो है कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है जी। क्लासरूम डिसिप्लिन का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। एक होता है टीचर से इंस्ट्रक्शन लेड लर्निंग, जो पीयर लर्निंग है, जो आपके साथ बैठ के बच्चों के साथ मिलके जो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और उसमें जो आपको सीखने को मिलता है उसका भी कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। आप जितनी मर्जी टेक्नोलॉजी, आज की डेट में कंपनियां ऑनलाइन ही लर्निंग पे फोकस कर रही हैं, उन प्रोडक्ट्स को बेच रही हैं, वो एक एडिशनल चीज़ हो सकती है जी। पर अगर बच्चा क्लासरूम में ढंग के समझ आ रहा है उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है जी। तो सबसे पहले तो हमें अपने टीचर्स को नमन करना चाहिए। ये 2 सालों ने ये सिखा दिया है कि टीचर का रोल कितना इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। अब दूसरा पार्ट आता है कि जो स्टूडेंट्स पीछे रह गए हैं, मेरे को लगता है कि अमन आपके साथ ही एक दिन हम कन्वर्सेशन में बात कर रहे थे कि एक एडिशनल सेट ऑफ हायरिंग होनी चाहिए टीचिंग में, जो कम्युनिटी बेस्ड लर्निंग हो जी, कि जहाँ पे पेरेंट्स, अब ज़्यादातर बच्चे जो पीछे रहे हैं, देखो इंडिया में क्या पूरी दुनिया में एक सोशो इकोनॉमिक डिवाइड होता है, इक्वालिटी नहीं है इनकम में और ये नॉर्मल बात है, वो डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, पर बेसिक चीज़ों का एक्सेस हर गरीब बच्चे को मिले। तो गवर्नमेंट्स को ये स्कीम लानी चाहिए कि जो डाटा और कंटेंट है, डिजिटल कंटेंट, वो हर बच्चे तक हम पहुंचा पाएँ। कुछ बच्चों के पीछे रहने का रीज़न भी यही रहा है कि उनके पास इंटरनेट, डाटा, ये कुछ फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थी जी। तो जो लोअर इनकम लेवल के जो की फैमिली से जो बच्चे आते हैं उनके बच्चों की लर्निंग पे ज़्यादा इम्पैक्ट आया है जी। तो इस डिवाइड को एटलीस्ट एजुकेशन के मामले में गवर्नमेंट कैसे ख़त्म करे, ये जानना, ये समझना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि फ्यूचर में भी कभी भी, और इनफैक्ट क्लासरूम के बाद भी, उनके पास एक कंट्रोल्ड डिवाइसेस होने चाहिए जिसमें वो सर्टन वेबसाइट्स ही देख पाएं जो लर्निंग रिलेटेड हो जी, या उसके अंदर आप कंटेंट फीड करके दे दो, उस पर इंटरनेट चल ही ना पाए जी। गवर्नमेंट
के पास इतनी कंटेंट है, इतने इंस्टीट्यूट्स है, वहाँ पे बेस्ट क्लासेस रिकॉर्ड करके आप टैब में उसमें डाल के बच्चे को परमानेंटली दे सकते हो उसकी क्लास की। अगले साल जब वो आए, अगले साल की कंटेंट उसमें ऐड की, टैब वही की वही रह गई। 3 साल बाद टैब भी चाहे चेंज कर दो। तो गवर्नमेंट के एजुकेशन में इतने फंड्स हैं, वो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट कर सकती है। तो इससे हम इस गैप को कवर कर सकते हैं। जो हम अगेन पहली बात पे आता हूँ, एक कैडर होना चाहिए टीचर्स का। जैसे मोहल्ला क्लिनिक्स हैं, है ना, मेरे को लगता है कि ऐसे मोहल्ले में टीचिंग मेंटर्स होने चाहिए। चाहे वो वॉलंटियर भी आपको बहुत मिल जाएंगे, चाहे आप एक पूरा कैडर क्रिएट कर दो, वो बच्चों की एक्स्ट्रा लर्निंग में हेल्प करें। अब कई बार ना सोल्यूशन बड़ा सिंपल होता है। नो डाउट हमारे बच्चे जो 5वीं के बच्चों पे जो एनालिसिस किया कि ज़्यादातर बच्चे 3rd से भी पीछे थे, कुछ बच्चों को तो सिंगल डिजिट काउंटिंग सिर्फ आती थी, वो बहुत सैड बात है। पर कई बार सोल्यूशन बड़ा सिंपल होता है, एक्स्ट्रा मेहनत। इन बच्चों को एक्स्ट्रा मेहनत कैसे करवाई जाए, इनको कैसे कवर अप करवाया जाए, इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है। टीचर्स को, पेरेंट्स को, बच्चों को खुद एक्स्ट्रा टाइम लगा के इस पे काम करने की ज़रूरत है। बिल्कुल सर, वो आइडिया बहुत अच्छा है आपका कि हम मेंटोर्स सेलेक्ट करें, हर गली मोहल्ले से लें कि वो बच्चों को हेल्प करें। कॉलेज जाने वाले बच्चे हैं जो स्कूल जाने वाले बच्चों को हेल्प करें, और स्कूल में सीनियर क्लासेस वाले बच्चे हैं जो वो जूनियर क्लासेस को हेल्प करें। तो ये बड़ा अच्छा आइडिया हो सकता है कि कम्युनिटी सेंटर्स में हम टैब्स अवेलेबल करवाएं और कंटेंट अवेलेबल हो उनके लिए। सर चलते हैं इंटरनेशनल मुद्दों पे। पाकिस्तान जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, इस देश में इमरान खान की सरकार गिरी और नई सरकार बनी। इमरान खान ने एक आज़ाद मार्च निकालने का फैसला किया और उसी फैसले ने इन पे केसेस और डाल दिए। देखो, उन्होंने आज़ादी मार्च निकाली थी। इमरान खान पिछले कुछ टाइम से ये इल्ज़ाम लगाते रहे हैं कि अमेरिका ने उनको तख्त से हटाया, उनको प्राइम मिनिस्टर पोस्ट से हटवाया। जो कॉन्फिडेंस मोशन उनके खिलाफ आया है वो अमेरिकन स्पॉन्सर्ड था। अब इसमें 2 बातें हैं। अमेरिका दूसरे देशों की गवर्नमेंट में मेडल करता रहा, ये कोई नई बात नहीं है। और पाकिस्तान तो अमेरिका के हाथ का एक पपट बन के रह गया है। तो अगर अमेरिकन जो लीडरशिप है या वहाँ के जो भी टॉप ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने आर्मी के साथ मिलकर या अपोजिशन लीडर्स के साथ मिलकर ये किया हो, ये भी हैरानी वाली बात नहीं है। दूसरी बात है, अल्टीमेटली एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस से, अब वो पीछे किसने करवाया वो तो अभी क्लियर नहीं है। उनकी गवर्नमेंट टॉपल हुई है। अब वो वहाँ पे प्रोटेस्ट करना चाह रहे हैं। अब इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट ये समझ रही है कि इमरान खान को पब्लिक सपोर्ट है। जो ये लास्ट इमरान खान की जो आज़ादी की मार्च हुई, इसमें कुछ लोग उनकी पार्टी के मारे भी गए, फायरिंग हुई थी। तो पब्लिक रिजेंटमेंट बहुत है गवर्नमेंट के खिलाफ भी। तो इसलिए उनके खिलाफ देशद्रोह का मामला डालने की गवर्नमेंट सोच रही है। और पाकिस्तान में चाहे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई हो, उनके हाथ में रियल पावर तो होती नहीं है, पर उनका माइंडसेट उनका भी डिक्टेटोरियल ही होता है। वो कोई भी ओपोजिशन सुनना नहीं चाहते हैं। इसीलिए वहाँ पे माइनॉरिटीज़ और बेसिकली किसी भी डिफरेंट वॉइस के लिए स्पेस नहीं बची है। और अब देखते हैं गवर्नमेंट इसके ऊपर, उनकी गवर्नमेंट क्या डिसीजन लेती है, पर अभी तक ये विचाराधीन है। अभी इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया। सर, अफगानिस्तान में तालिबान के साथ भारत की मीटिंग हुई और ताजिकिस्तान के रिलेशन अफगानिस्तान के साथ कुछ अच्छे नहीं है, तो इसका ताजिकिस्तान और भारत के रिलेशंस पे कुछ फ़र्क पड़ेगा? देखो, इसको आप उल्टी डायरेक्शन से देखेंगे तो ज़्यादा बेटर है। ताजिकिस्तान पिछले कुछ टाइम से चाइना के इन्फ्लुएंस में आ रहा है। उनका भी वही, चाइना उसी तरीके से डेट, उनके सबसे बड़ा डेट के जो जिनके वो देनदार हैं वो चाइना है। तो चाइना ऐसे ही आसपास के छोटे देशों को अपने डेट ट्रैप में फंसा रहा है और अपने इन्फ्लुएंस में लेके आने की कोशिश कर रहा है। दूसरा, ताजिकिस्तान की जो मुस्लिम गवर्नमेंट है, वो जो तालिबान जिस सेक्ट के मुस्लिम है, सुन्नी मुस्लिम, उनके अगेंस्ट ही रही है। तो इससे पहले 90s से ही इंडिया ने ताजिकिस्तान में अफगानिस्तान बॉर्डर के हॉस्पिटल भी बनाया था, जब नॉर्दर्न अलायंस तालिबान से लड़ रही थी, उनके भी इलाज के लिए और लोकल पॉपुलेशन के लिए भी। तो शायद तालिबान के साथ भारत का मिलना इस बात का नतीजा हो जो ताजिकिस्तान चाइना की तरफ जा रहा है, रेदर देन कि तालिबान से मिले हैं इसलिए रिलेशन खराब हुए हैं। मेरे को ये लगता है कि इंडियन फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री ने ये एनालाइज किया है कि हमें अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए तालिबान के साथ प्रैक्टिकल, इट्स अ pragmatic रिलेशन, इट्स नॉट एन ऑफिशियल रिलेशन, इट्स अ pragmatic रिलेशन कि हमारे असेट्स हैं, हमारे इंटरेस्ट है, हमने उनको कैसे प्रोटेक्ट करना है। और एट द सेम टाइम
हम इन रिलेशन को डीहाइफनेट भी कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से भी रखा जा सकता है। और ताजिकिस्तान के साथ हमारे कई दशकों से अच्छे रिलेशन रहे हैं, पर पिछले कुछ टाइम से चाहे वो जॉइंट फोर्सेस ऑपरेशंस भी हुए हैं चाइना, ताजिकिस्तान और पाकिस्तान आर्मी के, जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट या जिसको मुस्लिम माइनॉरिटीज़ के ऊपर जो चाइना अत्याचार करता रहा है अपने एरिया में, तो उनके जो होते थे सेपरेटिस्ट मूवमेंट के या इंडिपेंडेंस मूवमेंट के जो भी उनके नेता होते थे, वो कई बार ताजिकिस्तान आते थे। तो उनके साथ मिलके उनके ऊपर जॉइंट फोर्सेस के थ्रू एक्शन करते रहे हैं। तो अब ये गेम जियोपॉलिटिकल गेम है अपने नेबरहुड में। अब इस नेबरहुड में 2 सुपर पावर्स हैं, एक चाइना और एक इंडिया, एंड इट इज़ ऑलवेज अ जियोपॉलिटिकल गेम जो चलती रहती है, और उसके अंदर कोई परमानेंट दोस्त नहीं है, कोई परमानेंट दुश्मन नहीं है। ताजिकिस्तान के साथ हमारे रिलेशंस को हमने मैनेज करना है, पर अफगानिस्तान में हमारे असेट्स और हमारा कंट्रोल होना ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि पहले ये भी हुआ है कि पाकिस्तान ने तालिबान से जो मिलिटेंट्स हैं वो कश्मीर में उनको एंट्री करवाने की कोशिश की है। तो मेरे को ये लगता है कि ये सिचुएशन आगे इस पर नज़र रखने की ज़रूरत है भारत को, कि हमारे नेबरहुड में स्पेशली अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान में क्या हो रहा है, ताकि वो कभी भी हमारे लिए एक नेशनल सिक्योरिटी का रिस्क ना बने। जी बिल्कुल, शुक्रिया सर। इसी तरह देश दुनिया की बड़ी खबरों पे चर्चा करते रहेंगे, खास मुद्दों पे चर्चा करते रहेंगे और बताते रहेंगे इनसाइट्स जिनकी ज़रूरत है। देखते रहिए पंजाब टुडे। नमस्कार।